نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کورونا وائرس کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1408 شہری کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 7 اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ 89 روز کے دوران شہر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 21,581 ہو گئی ہے اور 290 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,641 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد 34 اموات کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ شہر میں کرونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1408 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور مجموعی تعداد 21,581 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 7 اموات کے بعد مجموعی تعداد 290 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2641 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور مجموعی تعداد 43,460 ہو گئی ہے۔ صوبے بھر میں 34 اموات ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 860 ہو گئی ہے۔ ترجمان محکمہ پرائمری ہیلتھ کے مطابق اب تک 3,08,806 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور 8,643 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کورونا وائرس کے خلاف پلازما تھراپی کے بعد IgG کو علیحدہ کر کے علاج کا آغاز کر دیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو 15 روزہ سخت کرفیو لگانا ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بسام سلطان کی رپورٹ۔ طبی ماہرین نے خبردار کر دیا کہ کرونا کسی نہ کسی صورت میں ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ UHS میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے VC پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ہم کمرشل بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے کرونا کا علاج دریافت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پہلے مریض پر IgG طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں صرف اور صرف مریض اور بیماری دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں معیشت نہیں دیکھ رہا، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ نہ میرا کام ہے یہ دیکھوں کہ لوگوں کو گھر میں کھانا کیسے پہنچے گا کرفیو میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حکومت نے پورا ملک چلانا ہے، میں نے بیماری کو خالی روکنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریض 2 ہفتوں کے بعد اپنا پلازما عطیہ کر سکتے ہیں۔ کمزوری سمیت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شہری مریضوں کو بچانے کے لیے پلازما بڑھ چڑھ کر عطیہ کریں۔ پلیز آگے آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ اس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ دستیاب ہے۔ آپ کو اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی شک و شبہ ہے، آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے کسی بھی وقت کسی بھی دن فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فریدون کا کہنا تھا کہ کورونا کی ویکسینیشن اتنی جلدی بنانا ممکن نہیں، احتیاط اس کا واحد حل ہے۔ RNA وائرسز کی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی، ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی۔ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی تو ہماری اس بیماری سے جان چھوٹے گی۔ اللہ کرے کہ ہم ویکسین جلدی بنا سکیں، لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی آسان نہیں ہے ویکسین بنانا۔ پروفیسر جاوید اکرم نے مزید بتایا کہ عام لوگ بلا ضرورت کورونا ٹیسٹ نہ کروائیں، لیبارٹری والوں تجوریاں نہ بھریں۔ اگر کسی کو علامات ظاہر ہوں تو گھروں میں ہی کوارنٹائن ہو جائیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ پنجاب پولیس میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ متاثر افسران اور اہلکاروں کی تعداد 924 ہو گئی ہے۔ مہلک مرض سے اب تک شہداء کی تعداد 7 ہو چکی ہے، جبکہ 401 افسران اور ملازمین صحت یاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹیز پر پہنچ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قرنطینہ سینٹرز، ہسپتالوں، مارکیٹوں اور ناکوں پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والی پنجاب پولیس کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران پنجاب پولیس کے مزید 137 افسران اور اہلکار کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 787 سے بڑھ کر 924 ہو گئی ہے۔ رپورٹ مثبت آنے والوں میں 516 افسران اور اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 7 شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 401 پولیس افسران اور اہلکار کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اب تک صوبے بھر میں 21,747 ملازمین کے ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں 18,000 نیگیٹو آئے، جبکہ 2,947 کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ لاہور پولیس کے سب سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکار کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 145 زیر علاج، جبکہ 97 جوان صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دن بدن پنجاب پولیس کے جوانوں میں کورونا کے بڑھتے کیسز افسران کے لیے تشویش کا باعث بننے لگے ہیں۔ ان حالات میں IG پنجاب نے تمام افسران کو حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم دیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ جن اضلاع میں حفاظتی سامان اور فنڈز کی کمی ہے وہ فوری آگاہ کریں۔ ان کو IG کے ویلفیئر فنڈ سے رقم فراہم کی جائے گی تاکہ فرنٹ لائن پر لڑنے والی فورس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ لیسکو کی مزید 2 سب ڈویژنز میں کورونا وائرس کے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ کیسز سامنے آنے پر دفاتر کو سیل کر کے اسپرے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
سمناباد اور پریم نگر سب ڈویژن میں 5 ملازمین میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سمناباد ڈویژن کے 1 ملازم جبکہ پریم نگر کے 4 ملازمین میں کرونا پایا گیا ہے۔ لیسکو نے کیسز سامنے آنے پر تمام ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کروا دیے ہیں، جن کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کرونا ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ دفاتر میں اسپرے کروانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کمپنی پالیسی کے مطابق 2 روز تک دفاتر کو سیل کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ کورونا کے علاج کے لیے ایکسپو سینٹر اسپتال کی سنگین بے قاعدگیاں، ضلع انتظامیہ کا مویشی منڈی اور اتوار بازار کے شامیانے لگانے والے ٹھیکیداروں سے اسپتال بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 90 کروڑ کا منصوبہ کسی مستند ادارے یا ماہرین کے بغیر بنا ڈالا۔ اناڑیوں کا بنایا ہسپتال مریضوں کے لیے عقوبت خانہ بن چکا ہے۔ کورونا کی حالیہ وبا کے دوران حکومت نے ضلع انتظامیہ کے ذریعے ایکسپو سینٹر میں جو فیلڈ ہسپتال قائم کیا، اس میں مزید سنگین بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال مویشی منڈی اور اتوار شامیانے لگانے والے ضلع انتظامیہ کے ٹھیکیداروں سے بنوایا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے کورونا فیلڈ ہسپتال کے قیام میں پنجاب حکومت کے ادارے آئی ڈیپ یا نیسپاک سمیت کسی بھی ہسپتال کے قیام کے ماہر کی خدمات نہیں لی اور نہ تجربہ کار ٹھیکیداروں کو اہم ترین پروجیکٹ سونپ دیا۔ بجلی کی فراہمی کے لیے جنریٹر لائٹس اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیاں بھی مذکورہ ٹھیکیداروں سے کرائے پر لی گئیں، جس کی وجہ سے کرایہ کی مد میں بھی کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ ایکسپو سینٹر انتظامیہ نے بھی کرایہ اور آپریشنل چارجز کی مد میں 37 کروڑ 9 لاکھ روپے سے زائد رقم کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ کورونا فیلڈ ہسپتال ایکسپو سینٹر پر خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود ہسپتال مریضوں کو علاج کی مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کر سکا۔ حکومتی احکامات نے کوارنٹین سینٹرز بند کر دیے، ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وبا کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں بنائے گئے عارضی قرنطینہ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق عارضی بنائے جانے والے قرنطینہ سینٹرز بند کیے گئے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں اور زیادہ مریضوں کی وجہ سے قرنطینہ سینٹرز بنائے گئے تھے۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کے کورونا ٹیسٹ نہیں ہوں گے، صرف علامات والے مسافروں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور گھروں میں قرنطینہ کیا جائے گا۔ کورونا وبا کے پیش نظر شہر میں 5 قرنطینہ سینٹرز اور ایک 50 بیڈ کا عارضی ہسپتال بنایا گیا تھا، جو کہ بند کر دیا گیا ہے۔ قرنطینہ سینٹرز میں کالا شاہ کاکو قرنطینہ سینٹر، پنجاب یونیورسٹی، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور یونیورسٹی، قذافی اسٹیڈیم، نشتر پارک کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹیشن کی مفت سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت ٹیچنگ اسپتالوں میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت دے سکی ہے، نہ ہی پرائیویٹ لیبارٹریز کو کٹس اور مشینری کی درآمد پر ڈیوٹی اور مختلف ٹیکسوں کی مد میں چھوٹ دے کر ٹیسٹ سستے کروا سکی۔ کورونا کی حالیہ وبا کے دوران حکومت کی جانب سے شہریوں کو مرض کی تشخیص کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹیسٹ کی سہولت تاحال فراہم نہیں کی جا سکی۔ شہر میں طبی تعلیم کی سب سے بڑی درسگاہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس سے منسلک تاریخی میو ہسپتال کی لیبارٹری میں بھی کورونا ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ گنگا رام ہسپتال، سروسز ہسپتال، شیخ ٹیسٹ کی سہولت ناپید ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اور سرکاری ہسپتالوں کی لیبارٹریز میں سہولت فراہم نہ کرنے کے ساتھ کورونا ٹیسٹ کرنے والی پرائیویٹ لیبارٹریز کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی پرائیویٹ لیبارٹریز کو کٹس اور مشینری کی درآمد اور یوٹیلٹی بلز اور دیگر مداد میں ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر ٹیسٹوں کو سستا کروانے کے لیے بھی تاحال کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا کسی کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، حکومت اقدامات پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کے لیے انتظامیہ اور پولیس کو ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے انتظامیہ اور پولیس کو مارکیٹوں، بازاروں اور بزنس ہاؤسز کو حکومتی ہدایات پر 100% عمل درآمد کروانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے خلاف ورزی پر قانون کے مطابق اقدام پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ان کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ موجودہ حالات میں سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وفاق کی رہنمائی میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ وہ حکومتی ہدایات پر منوعن عمل کریں۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कोरोना फैलाव को रोकने के लिए सोच समझकर फैसले करना होंगे। सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आवाम कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि अब भी वक्त है, होश के नाखून लें और सब एक होकर पॉलिसी बनाएं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास मुनक़िद हुआ। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा संजीदा मसला है। मुख्तलिफ जगहों पर सख्त चेकिंग की जाए। लाहौर के लिए खुसूसी प्लान होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में 1 माह का बैकअप रखें। अद्वियात की कीमतों पर कड़ी निगाह रखी जाए। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सनत में असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक और हेल्थ के दोनों सेक्रेटरीज़ के अलावा मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी हेल्थ ने सूबे भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमान और थानों में आने वाले साइलीन या तयनात अफसरान के हवाले से कोरोना SOPs हवा में उड़ाने लगी। CCPO ने इंदिया दिया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले SHOs और DSPs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। थानों की हवालात में मुल्जमान में समाजी फासले है, ना ही दीगर एहतियाती तदाबीर। दर्जन से जायद मुल्जमान को एक ही हवालात में रखा जाने लगा। पार्टीज पर छापे भी जारी। पकड़े जाने वाले अफराद बगैर मास्क को फासला कैद रखेंगे। मुल्जमान को पेशी पर थानों में तैनात एहलकार भी SOPs फरामोश करने दे। CCPO का कहना है कि थानों में SOPs पर अमल दरामद सख्ती से करवाया जाएगा। CCPO ने शहरियों को भी अंदिया दिया कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको पुलिस सर्विसेज ना देने का इख्तियार भी रखती है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने ये फैसला किया हुआ है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है कि बग़ैर मास्क के पुलिस के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में और दफातर में दाखिला नहीं होगा, और अगर कोई ऐसे करेंगे तो हम उनको सर्विसेज देने से इनकार भी कर सकते हैं। तो मेरी शहरियों से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो हर सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर में फ्रंटलाइन फोर्सेस में शुमार होने वाली पुलिस फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है और अब तक 8 अफसरान और एहलकार इस वबाई मर्ज से शहीद हो चुके हैं। अगर एहतियात ना की गई तो मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। इरफान मलिक, सिटी 42। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे के बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी भी अमली तौर पर खत्म हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ सरकारी दस्तावेजात तक महदूद हो गया। शहर के 38 इलाकों में से सिर्फ एक इलाके में लॉकडाउन है, वहाँ भी अमल दरामद नहीं किया गया। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी अमली तौर पर खत्म हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी सिर्फ कागजात तक महदूद है। कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए शहर के 38 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। केसेस रिपोर्ट होने पर शहर की यूनियन काउंसिल्स और गली मोहल्लों को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया। शहर में बढ़ते केसेस के साथ ही सरकारी इदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। शहर का सिर्फ एक इलाका मक्खनपुरा ही स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत कागजात की हद तक बंद है। दस्तावेजात के मुताबिक 175 घरों को लॉकडाउन किया गया, जहां 950 अफराद हैं, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरअक्स है। इसी तरह पंजाब में रावलपिंडी के सबसे ज्यादा 494 एरिया स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किए गए। मजमूई तौर पर सूबा भर में 1034 एरियाज को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया, लेकिन सूरत हाल हकाइक और कागजात के बरअक्स है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। कोरोना के वार PHA पर भी जारी हैं। PHA के अफसरान और मुलाजमीन आए रोज कोरोना का शिकार होने लगे हैं। डायरेक्टर फाइनेंस PHA उस्मान गनी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डायरेक्टर फाइनेंस PHA उस्मान गनी ने रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के वार PHA पर जारी हैं। PHA के अफसरान और मुलाजमीन आए रोज कोरोना का शिकार होने लगे। डायरेक्टर फाइनेंस PHA उस्मान गनी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डायरेक्टर फाइनेंस PHA उस्मान गनी ने रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बिल्कुल, PHA के अफसरान और मुलाजमीन आए रोज कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए खोलने का फैसला। तमाम अस्पताल 150 बिस्तर कोरोना के लिए मख्तस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास में प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन, प्रोफेसर साजिद मकबूल, प्रोफेसर अब्दुल नासिर शाह, डॉक्टर साकिब महमूद ने शिरकत की।
जबकि प्रोफेसर हुमैरा अकरम और प्रोफेसर वहीद उल हमीद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में इल्हाक शुदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए खोलने का फैसला किया गया। प्रोफेसर जावेद अकरम ने अरकान को बताया कि UHS के साथ 45 प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस इल्हाक शुदा हैं। पंजाब हुकूमत का माली बहरान के बावजूद आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा, जबकि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल में अखराजात का तखमीना 2179 अरब रुपए होगा। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नए माली साल 2020-21 के बजट में हुकूमत पंजाब की मजमूई आमदन का तखमीना 2380 अरब रुपए लगाया गया है। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत का माली बहरान के बावजूद आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020 और 21 का बजट 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा, जबकि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल में अखराजात का तखमीना 2179 अरब रुपए होगा, जबकि मजमूई सूबाई अखराजात में अखराजात का हुज्म 1427 अरब रुपए तजवीज़ दिया गया। ज़राए के मुताबिक करंट कैपिटल अखराजात का तखमीना 6 खरब 94 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। ज़राए के मुताबिक अकाउंट टू फूड का तखमीना 334 अरब रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात का तखमीना 322 अरब रुपए लगाया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली साल 2020-21 का बजट तैयार कर लिया। बजट दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। नए माली साल का 96% तरक्याती बजट सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मुख्तस किया गया है। गुज़श्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट 28 अरब इजाफे के बाद नया बजट 42 अरब 33 करोड़ मुख्तस किया गया है। कोई नई तरक्याती स्कीम को बजट में शामिल न किया गया। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। महकमा ट्रांसपोर्ट का माली साल 2020-21 का तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत ट्रांसपोर्ट के बजट में 28 अरब 83 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 13 अरब 50 करोड़ था, जबकि नए माली साल का बजट 42 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। नए तरक्याती बजट का 96% हिस्सा सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर खर्च होगा। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमा ट्रांसपोर्ट की जारी तरक्याती स्कीमों की मद में 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए माली साल के बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की गई। नए बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे भी नजरअंदाज किए गए हैं और 1 रुपया भी इनके लिए मुख्तस नहीं किया गया। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 42 अरब, 9 मुस्तकिल वेट स्टेशन की तंसीब के लिए 18 करोड़, व्हीकल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। उस्मान अलीम, सिटी 42। कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात। अगले माली साल में पंजाब पुलिस के बाद जेलों की भी कोई नई स्कीम शुरू नहीं की जाएगी। आइंदा माली साल में जेलों के तरक्याती बजट को 50% कम कर दिया गया। सिर्फ जारी स्कीम होगा। हुकूमत ने माली मुश्किलात की वजह से जेल खानाजात के तरक्याती बजट में भी 50% से ज़ायद का कट लगा दिया है और रवा माली साल में जेल खानाजात को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जबकि माली बहरान के बायस महकमा जेल का बजट 42 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लॉकडाउन से कबल जेल खानाजात ने सूबे भर में 7 नई और 22 जारी स्कीम्स के लिए 2.5 अरब मांगे थे, लेकिन दीगर महकमों की तरह महकमा जेल को भी 42 करोड़ बजट के तहत स्कीम्स का तखमीना लगाने की हिदायत की है। तरक्याती बजट की अदम फराहमी से महकमा जेल की कोई नई स्कीम शुरू नहीं होगी। पंजाब हायर एजुकेशन के बजट में कटौती का मंसूबा। आला तालीम के बजट में 50% तक कमी करने की तजवीज़ रखी गई है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के बजट में बहुत बड़ा कट लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़श्ता माली साल में दिए गए बजट में से भी 50% से ज़ायद कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 25 अरब रुपए का तरक्याती बजट तलब किया और एक्विजिशन महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भिजवाई। महकमा हायर एजुकेशन की भिजवाई गई समरी के जवाब में पंजाब हुकूमत 4 अरब रुपए से भी कम सिर्फ 3.7 अरब रुपए का बजट रखना चाहती है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ज़रई इनकम टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। पंजाब में ज़राअत के शोबे में इनकम टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। महकमा खजाना के ज़राए से मालूम हुआ है कि आइंदा माली साल में ज़रई इनकम टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं, जो जल्द वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ज़रई शोबे में 6 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 6 लाख रुपए से ज़ायद और 12 लाख रुपए आमदन पर 30,000 रुपए का सालाना टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई है। 12 लाख से ज़ायद और 18 लाख आमदन वाले किसान पर 30,000 टैक्स के साथ प्लस 10% टैक्स लेने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 18 लाख से ज़ायद और 25 लाख तक 90,000 रुपए का टैक्स प्लस 12.5% टैक्स
25 लाख से जायद और 35 लाख की आमदन लेने वाले किसानों पर 1,77,000, 35 लाख से जायद और 50 लाख रुपए तक की आमदन वाले किसान पर 3,27,000 का टैक्स प्लस 17.5% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। एक तरफ फंड्स की कमी का रोना, दूसरी जानिब दरियादिली की इंतहा। महकमे खजाना ने 10 म्यूनसिपल कमेटीज को PFC शेयर के तहत मुकर्ररा हिस्से से 31 करोड़ की रकम इजाफी जारी कर दी है। महकमे खजाना के रिकॉर्ड के मुताबिक MC कोर्ट 9 करोड़, MC रहीम यार खान को 2 करोड़, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा को 2 करोड़, MC खुशाब को 5 करोड़, MC राजनपुर को 3 करोड़, MC जामपुर को 2 करोड़, MC सनावन को 3 करोड़, MC उकाड़ा को 2 करोड़, MC टोबा को 2 करोड़ और MC मुजफ्फरगढ़ को 24 लाख इजाफी जारी किए गए हैं। FPCCI में वीडियो लिंक के जरिए कोविड-19 के पाकिस्तानी मईशत पर होने वाले असरात के उन्वान से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वीडियो लिंक के जरिए FPCCI लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अहदेदारान ने भी शिरकत की। कोविड-19 के हवाले से मुनक्किद किए जाने वाले सेमिनार में FPCCI सदर मियां अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद, नायब सदर सुल्तान रहमान, नदीम शेख, मोहम्मद अली मियां, कैसर शेख, हाजी गुलाम अली और दीगर ने शिरकत की। FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार का कहना था कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, जिसके मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि 3 माह में हुकूमत के रेवेन्यू में भी कमी हुई है और छोटा बड़ा हर कारोबार मुतासिर हुआ है। मियां अंजुम निसार का कहना था कि आइंदा माह अगर कोरोना वायरस में मजीद इजाफा हुआ तो मईशत मजीद ख़राब होगी। इस मौके पर FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि कोरोना वबा से मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और कोई नई सरमायाकारी नहीं आ रही। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में घपलों का ये मामला है। स्कूल सरबराहान ने हिदायत के बावजूद नॉन सैलरी बजट का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने स्कूलों को दोबारा तस्दीक शुदा बजट का रिकॉर्ड 1 जुलाई तक प्रोसेस लोड करने की हिदायत कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में घपलों का मामला। PMIU की हिदायत के बावजूद स्कूल्स ने नॉन सैलरी बजट का रिकॉर्ड सीज पर अपलोड न किया। स्कूल्स को माली साल 2018 और 2019 का NSP रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक मुतादिद स्कूल सरबराहान ने बगैर तस्दीक नॉन सैलरी बजट का गलत डाटा सीज पर अपलोड कर दिया था। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने स्कूल्स को दोबारा NSP का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अपलोड करने की हिदायत जारी कर दी है। PMIU की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक तमाम स्कूल 1 जुलाई तक NSP का रिकॉर्ड सीज पर अपलोड करेंगे। दुरुस्त डाटा फराहम ना करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। रीजनल टैक्स दफातर की अदम तवज्जही के बायस अरबों रुपए के हजारों ऑडिट केसेस टाइम बार्ड होने का खदशा। साल 2014 के अरबों रुपए के 10,000 से ज्यादा ऑडिट केसेस कार्रवाई न होने की सूरत में 30 जून को ज़ायदुल मियाद हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। FBR की हिदायत पर RTOs में साल 2014 के ऑडिट केसेस 30 जून से कबल निपटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के रीजनल टैक्स दफातर में साल 2014 के इनकम टैक्स ऑडिट की तकरीबन 10,000 से जायद केस जेरे इल्तवा हैं। ऑडिट केसेस 30 जून 2020 को टाइम बार्ड हो जाएंगे। ऑडिट केसेस ज़ायदुल मियाद होने की सूरत में FBR को रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए का नुकसान होगा। पंजाब में नए माली साल में ऑनलाइन टैक्सेस अदा करने वाले शहरियों को 5% रियायत दी जाएगी। महकमे खजाना पंजाब ई-पे ऐप पर टैक्स देने वालों को खुसूसी रियायत देगी। नए माली साल में बजट के साथ टैक्सेस में इजाफे और कमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को टैक्स में रिलीफ देने के लिए नया प्लान तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में नए माली साल में ऑनलाइन टैक्सेस अदा करने वाले शहरियों को 5% रियायत दी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब ई-पे ऐप पर टैक्स देने वालों को खुसूसी रियायत देगा। ज़राए के मुताबिक माली साल के लिए महकमा खजाना ने तजावीज़ हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक ई-पे ऐप पर मौजूद मुख्तलिफ सूबाई महकमों के टैक्सेस हैं। शहरियों को 5% रियायत दी जाएगी। ई-पे ऐप पर एक्साइज, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सन्नत और ट्रांसपोर्ट के टैक्सेस अदा किए जाएंगे। महकमा खजाना के मुताबिक ऑनलाइन टैक्स पर रियायत देने का मकसद शहरियों को इस सिस्टम की तरफ लाना है ताकि उनके लिए टैक्स की अदायगी में आसानी हो सके।
पहले हफ्ते में ऑनलाइन सिस्टम से खातिर ख्वाह नताइज ना हासिल होने पर महकमा एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला सामने आया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अब पहले से 3 गुना से ज्यादा जारी की जाएंगी और 2 हफ्ते तक का वक्त दिया जाएगा। दफ्तरों के बाहर रश के पेश नज़र मजीद दफातर खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई है। एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पहले 7 रोज के दौरान खातिर खा नताइज हासिल न होने पर इसको बेहतर बनाने और ऐप में मौजूद खामियां दूर करके शहरियों को सहूलियात देने के लिए अपॉइंटमेंट्स बढ़ाने का फैसला किया है। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने एक्साइज दफ्तर गाड़ी रजिस्टर्ड ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी करार दिया था, जो कि मौसर साबित न हुआ। डीजी एक्साइज चौधरी मसूदुल हक का कहना है कि पहले से वक्त लेने का दौरानिया इंतहाई महदूद होने से काम न होने के बराबर था। अब नए सिस्टम से आसानियां पैदा होंगी और 3 गुना ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जारी की जाएंगी और शहरियों को 2 महीनों बाद की बजाय 2 हफ्तों तक का टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। डीजी एक्साइज कहते हैं कि रेवेन्यू बिल्कुल रुक कर रह गया है। दफ्तरों के बाहर रश बढ़ने की वजह से मजीद दफातर खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी है। अली साही, सिटी 42। नादरा लाहौर रीजन में डीजी नादरा की जेर निगरानी ई कचहरी का इनेकाद किया गया। 55 अफराद की फ़ोन कॉल्स वसूल की गईं। डीजी नादरा कर्नल रिटायर्ड सुहेल महमूद ने मौके पर शिकायत के अजाले के लिए अहकाम जारी किए। नादरा की ऑनलाइन खुली कचहरी में अवामी शिकायत के अजाले के लिए नादरा के मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। डीजी नादरा ने अवाम के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। डीजी नादरा पंजाब कर्नल रिटायर्ड सुहेल महमूद ने कहा कि तमाम नादरा सेंटर्स में थर्मल चेकर्स, जरासीम कुश गेट, सैनिटाइजर्स, मास्क और समाजी फासले जैसी तदाबीर इख्तियार की गई हैं। बैंक्स में लाइन्स और कोरोना के डर के बायस ऑनलाइन अदायगियों को रुझान बढ़ चुका है। 80% शहरियों ने ट्रैफिक चालान की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीक़ाकार से अदायगियाँ की। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के मुताबिक 6 रोज में 30,620 अफराद को खिलाफ वर्जी पर चालान टिकट जारी किए गए। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जरिए 20,634 शहरियों ने चालान जमा करवाए। सीटीओ का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद शहरियों को मौका पर ही कागजात देने का सिलसिला जारी है। इसी तरह शहरी जैज कैश, मोबी कैश, इजी पैसा, वन लिंक, ATM से भी चालान पेमेंट जमा करवा सकते हैं। सैयद हमाद आबिद का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मैनुअल पेमेंट की कबाहतों को दूर कर दिया गया है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, टाइगर फोर्स कहां चली गई? नोटिफिकेशन करा लिया, सरकारी अफसरान से तरबियत भी ले ली, लेकिन बाजारों और मार्केट्स में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद के लिए टाइगर फोर्स के रजाकार कहीं नजर नहीं आए। रिपोर्ट कर रहे हैं राउत दिलशाद हुसैन। SOPs पर अमल दरामद कराने की बजाय टाइगर्स फोर्स कोरोना के खौफ से कहीं छुप गई। टाइगर फोर्स के रजाकारों की सबको तलाश है। नोटिफिकेशन करा लिए, तरबीती वर्कशॉप भी हो गईं, लेकिन अमली तौर पर टाइगर्स फोर्स हरकत में ना आ सकी। लॉकडाउन खत्म हो गया, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कराने वाली टाइगर्स फोर्स बाजारों से गायब है। वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर शहर के 501 रजाकारों ने खुद को टाइगर्स फोर्स में रजिस्टर्ड कराया। टाउन हॉल में चीफ कारपोरेशन ऑफिसर, MO रेगुलेशन और डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी ने टाइगर्स फोर्स के जवानों को तरबीती लेक्चर्स दिए, जबकि टाइगर्स फोर्स के जवानों की रजिस्ट्रेशन करके इनके करीबी इलाकों में ड्यूटियां भी तफवीज की गईं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि जब से मार्केट्स खुली हैं, टाइगर्स फोर्स का एक भी जवान यहाँ नहीं देखा। टाइगर्स फोर्स का नाम जरूर सुना है, लेकिन काम करते कहीं नहीं देखा भी नहीं कोई शहर। टाइगर फोर्स का सिर्फ नाम सुना हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, कोई शक्ल भी नहीं है, कोई वर्दी भी नहीं है। कोई टाइगर फोर्स नहीं है, ना कोई यार है, हमें तो पता ही नहीं है टाइगर फोर्स, बस नाम रखा हुआ है टाइगर फोर्स का। जब से दुकानें खोली है ना, यहाँ हमें कोई टाइगर फोर्स नहीं नजर आई। टाइगर फोर्स का बस एक नाम ही है। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद तो दरकिनार, टाइगर्स फोर्स के रजाकारों ने लॉन्चिंग के बाद किसी ऑफिसर से राब्ता तक नहीं किया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब हुकूमत को MBBS फाइनल ईयर के तलबा का मुस्तकबिल बचाने का ख्याल आ ही गया। ज़िमनी इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना वबा के बायस पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे इंतजाम 1 जून से शुरू होने वाले MBBS के ज़िमनी इम्तिहानात को मनसूख कर दिया था। ताहम ज़िमनी इम्तिहानात न होने की सूरत में MBBS फाइनल ईयर के सैकड़ों तलबा का 1 साल ज़ाया होने से बचाने के लिए अब हुकूमत ने ज़िमनी इम्तिहानात की इजाज़त दे दी है। ज़िमनी इम्तिहानात कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम के साथ मुनक्किद होंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान के मुताबिक काबीना कमेटी बराए कोरोना की जानिब से MBBS फाइनल प्रोफेशनल के ज़िमनी इम्तिहानात की इजाज़त मिल गई है। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज समेत दीगर तालीमी इदारे हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکولز میں زیر تعلیم پہلی سے 8ویں جماعت کے طلباء کو اگلی جماعت میں پروموٹ کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن نے پہلی سے 8ویں جماعت تک کے طلباء کو پروموٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز دونوں پر ہوگا۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب سائرہ اسلم کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد پہلی سے 8ویں جماعت کے تمام طلباء اب بغیر امتحان اگلی جماعت میں بیٹھیں گے۔ طلباء کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ حالیہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور پی سی بی کی پابندیوں کے باوجود نوجوان کرکٹرز کی بڑی تعداد ایل سی سی گراؤنڈ میں بغیر احتیاطی اقدامات کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کرکٹ آرگنائزرز اور کرکٹرز کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ حافظ شہباز کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومتی احکامات اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی پابندیوں کے باوجود ایل سی سی اے گراؤنڈ پر بڑی تعداد میں نوجوان کرکٹرز بغیر حفاظتی تدابیر اختیار کیے لاپرواہی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کھیل کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان کسی قسم کے سماجی فاصلے کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ احتیاط اپنی جگہ، مگر حکومت کو لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دیگر شعبوں کی طرح ایس او پیز کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ احتیاط تو کرنی چاہیے، اس لیے تو ہم ماسک پہن رہے ہیں، وہ ہینڈ واش بار بار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم صبح کے ٹائم آتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، تو ایکسرسائز ہوتے ہیں صبح جو کرتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں نا، ہم ماسک پہن لیتے ہیں، بار بار ہینڈ واش کرتے ہیں، اس وجہ سے تو گورنمنٹ کی بن کی ہے، لیکن ہم نے بس بچے تو آ رہے ہیں آج کل۔ غلط تو نہیں، اگر آپ آتے ہیں کھیلنے آ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ مکمل ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح مرضی جو مرضی کا آپ کام کر سکتے ہیں۔ کلبوں کی پریکٹس پر پابندی کے باوجود نیٹ پریکٹس کروانے والے شعیب کرکٹ اکیڈمی کے روح رواں تاج محمد کا کہنا تھا کہ جب باقی شعبے کھول دیے گئے ہیں تو ہم کیوں پریکٹس نہ کریں، حکومت کو ہمیں کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ابھی عمران خان صاحب نے جو لاسٹ ٹائم پہ تقریر کی ہے، لاک ڈاؤن کو بند نہیں کیا ہے، نرم کیا ہے، اس میں مین پوائنٹ جو ہے نا جو سختی کی ہے، ماسک لازمی پہننا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا ہینڈ واش بار بار کرنا چاہیے، ہر چیز ساتھ ہونا چاہیے، اس کی احتیاط لازمی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کا اگر نہیں ہو تو جرمانہ ہوگا۔ تو بقایا اسپورٹس ہمیں ہمارا حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا دوبارہ بحال کریں۔ نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ میدان میں آنے سے ان کی فٹنس اور صحت میں بہتری آتی ہے، اس لیے کھیلوں پر پابندی ختم کی جائے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ شہر میں پیٹرول کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا، متعدد پیٹرول پمپس بند اور پیٹرول کی ترسیل بھی بند ہے۔ شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی، 10 دن گزر گئے مگر پھر بھی پیٹرول کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پیٹرول کی کمی کے باعث شہری شدید پریشانی میں مبتلا۔ بہت ذلیل کر کے رکھ دیا، ہمیں ہائی اپٹن دے رہے ہیں 142 کا جو ہم نہیں ڈلوا سکتے، سپر پیٹرول ہی بالکل ختم کر دیا ہر پمپ نے، اور ذلیل ہوتے پھیرے ہم ہر جگہ سے، کوئی ذلیل ہونے سے بچائیں۔ ہر چیز مہنگی کرتے جا رہے ہیں، پیٹرول اب مل نہیں رہا کہیں سے بھی، ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسی کم قیمت کو کیا کرنا، جس کے بعد پیٹرول مل ہی نہیں رہا اور مجبوری میں پیٹرول سے مہنگا ہائی آکٹین ڈلوانا پڑ رہا ہے۔ پیٹرول پمپس کی بندش اور پیٹرول نہ ملنے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر، جبکہ عام شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کیمرہ مین محمد اسد کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42 لاہور۔ سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا یہ معاملہ ہے۔ ضلع انتظامیہ اور متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے مابین قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے مذاکرات آج دوبارہ شروع ہوں گے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے کہا ضلع انتظامیہ تندور مالکان کو سستا آٹا اور فائن میدا فراہم کرے ورنہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل نے سٹی 42 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ کو 2 روز کا مزید وقت دے رہے ہیں، سادہ نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ کریں یا پھر سستا آٹا فراہم کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں گندم کے بیج کی بین الاضلاعی اور بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو گندم کے بیج کی نقل و حرکت میں مداخلت سے روکتے ہوئے وفاق اور پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے صاحبان انٹرپرائزز کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسرار الہی پیش ہوئے۔ درخواست گزار وکیل نے وفاق اور پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی ضلعی اور بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी छापामार कार्रवाई 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का स्मगलशुदा वाइट स्पिरिट लेकर कोयटा से आने वाले 2 ऑयल टैंकर्स कब्जे में ले लिए गए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने वाइट स्पिरिट की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कोयटा से 1,40,000 लीटर स्मगलशुदा ईरानी वाइट स्पिरिट लेकर लाहौर आने वाले 2 ऑयल टैंकर्स मुल्तान रोड पर कब्जे में ले लिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ऑयल टैंकर शेखुपुरा जा रहे थे। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। आईजी ने तमाम अजला में जारी तरक्याती स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स की निगरानी, आरपीओज डीपीओज को खुद करने और थाना जात की बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन और पुलिस इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। थाना काहना के इलाके में 10 साला बच्चे से ज्यादती का मामला, पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुतासिरा बच्चे की वालिदा की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक मुर्तजा उर्फ चांद नामी हिमसाय ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चे के अहले खाना ने कहा कि बच्चे को मुलजिम बहलाकर अपने घर लेकर गया। बच्चे की रोने की आवाज पर वालिदा और दीगर अफराद ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ा, मगर मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बच्चे के वरसा ने कहा कि मेडिकल भी कराया जा चुका है, जिसमें ज्यादती साबित हो गई है। बादामी बाग पुलिस ने कार्रवाई करके 4 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा बैटरीज और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन्हें इतला मिली कि बादामी बाग के इलाके में गाड़ियों से बैटरीज चोरी होने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिस पर पुलिस ने मंजर की बताई हुई जगह पर छापा मारकर 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से गाड़ियों से चोरी शुदा बैटरीज और 2 पिस्टल्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साबिक यूनियन काउंसिल 111 के टाइगर फोर्स मेंबरान की रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा से उनके डेरे पर मुलाकात हुई। कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा से उनके डेरे पर टाइगर फोर्स के रजाकारों ने मुलाकात की। इस मौके पर रजाकारों ने मलिक नदीम अब्बास बारा को इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। मलिक नदीम अब्बास बारा ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने हल्के की आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि डेंगू की वबा शुरू होने वाली है, इससे कबल हल्के की सफाई सुथराई और सीवरेज के काम मुकम्मल करने होंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स अवामी मसाइल की निशानदही करे ताकि उनके बर वक्त हल के लिए कोशिशें शुरू की जा सकें। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खोलने का मामला, पंजाब हुकूमत ने मामला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल की इजाज़त से मशरूत कर दिया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त देनी है या नहीं, पंजाब हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी को काउंसिल के फैसले से मशरूत कर दिया है। ताहम वज़ीर सनअत व तिजारत असम इकबाल ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को यकीन दहानी करवाई है कि वो मामला काबीना कमेटी के इजलास में रखेंगे। मॉल रोड के ताजिर कायदीन के वफ्द की सूबाई वजीर सनअत मियां असलम इकबाल से मुलाकात। वफ्द ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को मॉल रोड की ताजिर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर सनअत मियां असलम इकबाल से मुलाकात करने वाले ताजिर वफ्द की क़यादत सीनियर ताजिर रहनुमा नासिर अंसारी ने की। नासिर अंसारी ने सूबाई वजीर सनअत मियां असलम इकबाल को ताजिर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की सदर सानिया कामरान रुकने पंजाब असम्बली बन गई। सानिया कामरान नुसरत शाहीन की खाली होने वाली नशिस्त पर रुकने असम्बली बनी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की सदर सानिया कामरान की रुकने पंजाब असम्बली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला ने मुशीर सयाहत आसिफ महमूद को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। टूरिज्म और PHE से मुतालिक तमाम समरीज और फाइल्स मुशीर सयाहत के जरिए भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुशीर सयाहत आसिफ महमूद को नई जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। यूनियन काउंसिल 221 जौहर टाउन F2 ब्लॉक में गलियों की तामीर का काम जारी। अहलियान इलाका ने तामीर पर शुक्रिया अदा किया। सड़क की तामीर के मौके पर कोऑर्डिनेटर हल्का 167 चंदा मलिक, साबिक काउंसलर नेक मोहम्मद, UC कोऑर्डिनेटर मियां नदीम, हाफिज अनीस, चौधरी हसीब, मियां सईद और दीगर भी मौजूद थे। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज कराची के बाहमी ताउन से कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया गया।
इफ्तिताई तकरीब अल खिदमत कम्प्लेक्स जोहर टाउन में मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना था, अब कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद अपना प्लाज्मा अतिया करके दीगर कोरोना मरीजों की जान बचा सकते हैं। आपकी नाम, आपका पता, आपके नंबर्स किसी के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। मुकम्मल राजदारी के साथ आपके प्लाज्मा डोनेशन की जो एक्टिविटी है, आपसे अगर रब्ता भी किया जाएगा तो महज़ब तरीके से रब्ता किया जाएगा। आपने आगे आना है, अपना प्लाज्मा डोनेट करना है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन अल खिदमत कोरोना टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन एहसान उल वकास ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन कोविड-19 लैब लाहौर में कोरोना टेस्टिंग और प्लाज्मा अतिया और प्लाज्मा थेरापी से इलाज की मायारी सहूलियात फराहम कर रही है। जब भी कोई मुश्किल मरला आया हमारी कौम पर, उसमें सबसे आगे बढ़कर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो तफसील मेरे रहनुमा जनाब डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब ने पेश फरमाई है, उसके मुताबिक पूरे मुल्क में शायद कोई जगह ऐसी हो कि जहां अल खिदमत के रज़ाकार कोई ना कोई खिदमत करने के लिए ना पहुंचे। जून के आखिर में अल्लाह ने चाहा तो फैसलाबाद में भी कोविड लैब काम शुरू कर देगी और जुलाई का महीना हमने मुख्तस किया है कि पेशावर में भी हमारी लैब काम करना शुरू कर। अल खिदमत फाउंडेशन प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से राबिता मुहिम चलाएगी ताकि कोरोना से सेहतयाब अफराद आगे बढ़ें और मुश्किल की इस घड़ी में दूसरे अफराद की जिंदगी के लिए उम्मीद बन सकें। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में शिरकत की तैयारियों के हवाले से फेडरेशन का इजलास मुनक्किद हुआ। खिलाड़ियों को घरों में खुद को महफूज रखते हुए प्रैक्टिस जारी रखने की हिदायत जारी की गईं। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर सैयद फ़खर अली शाह की ज़ेर सदारत फेडरेशन के ऑफिस में पाकिस्तान की अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।